Good afternoon, everybody. It's an absolute privilege and honor for me today to be able to address all of you live on this Facebook initiative, which has been taken by Young Indians Bhopal. I express my sincere gratitude to the management of Young Indians Bhopal for taking this BRT 257 RTI initiative open across all roundtable India chapters and allowing me to share my views on this very interesting topic called importance of values in life. Good afternoon again. Let me start with a beautiful story. This story is about geese. हिंदी में अगर कहूं तो कमल हंस जिसे कहते हैं गीस। गीस जो होता है वो जब भी उड़ता है तो they fly in a V formation, and there is a very important reason why they fly in that V formation. It is told that when they fly in that V formation, they get a thrust of about 70% more than their normal flight. Now, this is a very unique thing for the geese. It's a beautiful thing. When they fly together, they get 70% extra thrust when they fly. The second thing is that whenever they fly, they honk from behind. थोड़ी सी आवाज करते हैं आगे वाले कमल हंस को मोटिवेट करने के लिए। ऐसा माना जाता है कि आगे वाले कमल हंस को मोटिवेट करने के लिए दे हॉन्क फ्रॉम बिहाइंड, लेकिन हम इंसान कभी भी अगर आवाज करते हैं तो वी हॉन्क जनरली टू ब्रिंग पीपल डाउन. सो देयर इज अ लेसन टू लर्न फ्रॉम दिस गीस इवन इन दिस हॉन्किंग. द थर्ड लेसन इज दैट व्हेन द फ्रंट गीस गेट्स टायर्ड, he moves to the rear and he allows another geese to take over. यानी रोटेशनल लीडरशिप देखने को मिलती है उनके साथ. You know, they are not worried कि मैंने अगर मेरा पोजीशन छोड़ दिया तो मेरा गया फिर. The fourth thing is that जब वो उड़ते हैं V formation में, if a geese comes out of it, it feels the reduction of the thrust, and so it goes back to the formation. So they have the humility to accept their mistake that they went out of the formation, and they are allowed by the team also into the formation. This is another beautiful thing about the geese. Another lesson is that whenever one geese is sick, जब कोई कमल हंस बीमार हो जाती है या हो जाता है तो दो geese उसके साथ नीचे आते हैं. They stay with that geese, they take care of that geese till the time that geese recovers or it passes away, one of the two, and they stay with it. कितना इससे हम भी सीख सकते हैं कि यदि किसी इंसान को जरूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. That is मान्यता है, values. It speaks a lot about their values. And the last is that they stay committed to their core values and purpose. यानी कमल हंस का उड़ने का एक ही रास्ता है, and year after year they are migrant birds. Whenever they fly, regardless of the formation, regardless of the family with which they fly, they will fly the same route. So with these 6 lessons, these are the 6 important values that Kamal Hans or geese teach us. I begin my session titled Importance of Values in Life. Now, what is the agenda for the day? This is what I'm going to take you all through. The meaning of values and personal values. Why do some people have poor values? What money can't buy, पैसे से हम क्या खरीद नहीं सकते हैं. Types of values क्या क्या होती है, किन किन विभिन्न प्रकार की values है. Some wise quotes, कुछ बहुत ही अच्छे कहावतें, and आप किस तरह से अपने आप को याद इस दुनिया में करवाना चाहेंगे, या how would you like the world to remember you? By the end of this session,
you will be able to identify what are values and personal values, explain why some people have poor values, list what money can't buy, relate with some wise quotes, associate with like-minded with some quotes, and associate how you would like to be remembered. It's a beautiful session. Enjoy it for the next 50 minutes. Now, what are values? क्या है मान्यताएं? मान्यताएं ऐसे हमारी बिलीव्स है जो हमें मोटिवेट करती है किसी भी सिचुएशन में हम किस तरह से एक्ट करेंगे या व्यवहार किस तरह से दिखाएंगे. It guides our behavior. Something that people tend to believe to be right as it may relate to their culture, and something that people are predisposed to adopt. What does that mean? You know, there was a farmer who owned a lot of land in Atlantic. Now, Atlantic, we all know how cold Atlantic can be. So he constantly used to advertise saying that I need people to work in that farm, but you know, because of the working conditions and इतनी ठंड में कोई जाके काम नहीं करना चाहता है या कर सकता है, उतनी ठंड होती है वहां पे. One day, one man came to him, and this man was well past his middle age, एकदम दुबला पतला सा आदमी था. And when that farmer asked him, will you be able to work on these kind of conditions? The man replied, well, I can sleep when the wind blows. अब उसको समझ में नहीं आया, जिसने इंटरव्यू लिया उसको ये समझ में नहीं आया. When this man said, I can fly, I can sleep when the wind blows. उसके तो कुछ समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है करके, लेकिन उसे उसने काम पे रख लिया क्योंकि उसे जरूरतमंद एक इंसान की जरूरत थी उसे. Now the little man worked throughout the day. He used to take care of the farms from dawn to dusk. बहुत अच्छी तरीके से काम करता था. लेकिन एक रात जबरदस्त तूफान आया वहां पे, यानी बर्फीली तूफान, नॉर्मल तूफान नहीं, बर्फीली तूफान. अब ये जो फार्मर जिसने इसको हायर किया, he jumped out of his bed and he rushed to the door of that farmer to wake him up to say that, hey bhai, tu so raha hai and here there is a lot of snowstorm happening. Have you made sure everything is fine? And the man rolls over the bed sheet above his head and says, sir, I told you I can sleep when the wind blows. करके उसने बोला. अब अपना फार्मर जो है वो थोड़ा सा डर गया कि ये सो रहा है, ये कुछ कर रहा है कि नहीं, ऐसे ही बोल रहा है, क्या कर रहा है ये. तो वो खुद गया बाहर देखने के लिए कि क्या हो रहा है, इसने कुछ किया है कि नहीं किया है. एंड टू हिज सरप्राइज ही फाउंड दैट द entire farm was completely covered by tarpaulin. He found that the cows were properly tied and kept in their barn. The chickens were kept in their coops, and the doors were all barred. The shutters were tightly secured. Everything looked perfect, and he was assured that nothing can disturb, even the greatest wind can't do anything to his farms. This story represents the values of the man he hired and how much belief he had in himself when he says that I can sleep when the wind blows. You know, ये हम जो जिंदगी में तकलीफें महसूस करते हैं उससे हम क्या सीखते हैं. That man had undergone a lot of troubles in his life, and he had you know, made his life in such a manner that he was very confident what he was doing. When you are spiritually connected with yourself, when you are intellectually connected with yourself, nothing can trouble you. That's the lesson we take
and those should be our values in life. So this man, Calvin Coolidge, is the 30th president of the United States of America. And what a beautiful quote he has given, saying, no person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave. हम जो चीजें प्राप्त करते हैं जिंदगी में, उसके लिए कुछ हमें महत्वाकांक्षा नहीं मिलती है, लेकिन जिस चीज को हम देते हैं उस चीज के लिए हमें लोग याद रखते हैं कि हमने क्या दिया। और ऐसे ही हमारे भी एक नेता है, देखिए महात्मा गांधी जी, इन्होंने क्या कहा, 7 डेडली सोशल सिंस, सामाजिक गुनाह जिसे कह सकते हैं। सबसे पहले इनका कहना था कि राजनीति सिद्धांतों के बगैर, प्रिंसिपल्स के बगैर गलत बात है, वैल्यूज वहां पे नजर नहीं आती है। वेल्थ विदाउट वर्क, आपको बहुत सारा संपत्ति कमाना है लेकिन आप काम नहीं करना चाहते, ये तो गलत बात है। कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी, बिजनेस कैसे करेंगे नीति के बगैर, अपनी क्या एथिक्स है, अपनी क्या मॉरल वैल्यूज है, उसके बगैर आप कैसे कॉमर्स कर सकते हो। एथिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेजर विदाउट कॉन्शियंस, है ना, अपने को सब चीज चाहिए लेकिन विवेक के बगैर बिल्कुल भी नहीं। एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, ऐसी क्या हमारी एजुकेशन होगी अगर हमारी चरित्र पे उसका कोई असर ना हो। विज्ञान मानवता के बगैर, मानवता के ऊपर यदि विज्ञान का कोई असर ना हो, then what is it useful for? And last में वर्शिप, जो हम प्रार्थना करते हैं, जो हम धर्म मानते हैं, बलिदान के बगैर कुछ नहीं है। ये उनकी वैल्यूज थी महात्मा गांधी जी की। So what are personal values? Now, personal values are nothing but those which define our character, our interactions with our family, our friends and others. How do we take decisions in life? What are the processes? What is the overall quality of our life? What is our happiness and well-being? What defines it? यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा एक इंसान की। 70 people were working in a place called Tumba, and they were on a mission, and they were working nearly 14 to 15 hours a day. They had a very, very tough taskmaster in the form of a manager. But none of them would want to leave the job and go away. One day, one of the scientists goes to the manager and asks him, "Sir, can I go home at 5:30 today?" And the manager says, "Of course you can go home, but why do you want to go home at 5:30? And the employee says, "Sir, there is an exhibition which has come in the neighboring village. I want to take my children, my wife, and we want to go out as a family and spend some quality time as a family. We have been working 14, 15 hours a day and I don't get to spend any time with the family." The manager was very happy. He said, "Of course you should go and you should spend good quality time with your family." Now this man goes back very enthusiastically because he's very happy that he gets to go home today at 5:30 और वो काम पे जुट जाता है। And in that enthusiasm to work, he forgets his lunch. He forgets when it is 5:30, वो काम पे लगा हुआ है। When he sees his watch, suddenly it is 8:30 in the evening. 8:30 हो गया। He runs to boss's cabin. अब बॉस तो रुकने वाले नहीं है उसके लिए, वो चले गए। This man comes home very very dejected, मायूस होके घर आया और घर आके हाथ मुंह पैर धोए उसने और एक कोने में जाके बैठ गया किताब पेपर लेकर के। His wife comes and asks him, "खाना लगाओ या चाय पियोगे?" And he says, "यदि आप पीने वाले होंगे तो चाय दे दीजिए वरना खाना ही दे दीजिए." And he says, "I am extremely sorry, darling. Today, the children must have been waiting for me to come and take them to the exhibition. I couldn't come. I was so engrossed in my work that I couldn't come. I'm extremely sorry," he says. His wife asks him, "Oh, you don't know? Your boss came at 5:15
and took the children to the exhibition. Ladies and gentlemen, who is this I am talking about? Who is this boss? He was none other than our beloved late Prime Minister, Shri APJ Abdul Kalam sir. That was his character. Those were his personal values. He kept a watch on this person. He knew at about 5 o'clock that this man is so engaged in his work, he's not going to go home. He was very, very sure of it. तो उन्होंने खुद अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को ली और गए और उनके बच्चों को अपने जिम्मेदारी पे एग्जीबिशन लेकर गए. These are his personal values, and there is so much to learn from this gentleman. Whenever his name comes today, you're going to hear his name at least 3 to 4 times. He's one of my favorite gurus and one of my mentors whom I worship in life. चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा. Why do some people have poor values? No, they have this I don't care attitude. जो हो जाए मैं और मैं जो करता हूँ वो सही है. That kind of an attitude, you know. They have a lack of assertiveness many a times. They are very aggressive, but they're not assertive. You know, my way or the highway types, but they're not assertive many a times. And that shows their poor values. They are very critical, आलोचनात्मक और ईर्ष्यापूर्वक होते हैं ऐसे लोग. They are gossip mongers, अफवाहें फैलाना. बिल्कुल नहीं. Place emphasis on material things. पैसे कमाओ, घर कमाना, पैसे कमाना, materialistic things कमाना, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं. They are the yes people. कुछ भी बॉस बोले, कोई भी बोले, yes yes बराबर है, आप जो बोल रहे हो वो सही है. खुद का कोई उनका विचार नहीं है. They feel very uncomfortable when alone, because कभी कभार आप जब अपनी वैल्यू सिस्टम में नहीं रहते हैं और अपनी वैल्यू सिस्टम आपकी कोर वैल्यू सिस्टम्स अच्छी नहीं होती है तो आपको डर लगता है अकेले अकेले रहते रहते. दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म. यदि उनकी कोई आलोचना करते हैं तो वो उसे भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. दे हैव पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड दे मेक एक्सक्यूजेस, ब्लेम अदर्स एंड लिव इन डिनायल. यानी दो तरीके के इंसान हो सकते हैं. या तो आप ओनरशिप लीजिए, अकाउंटेबिलिटी लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तो आपको ऐसा कहा जाएगा कि आप लाइन के ऊपर हो. या आप ब्लेम कीजिए दूसरों को, एक्सक्यूजेस दीजिए और डिनायल मोड में रहिए तो आप लाइन के नीचे रहेंगे. कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से हुआ. दूसरों को डिनायल, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, डिनायल में रहते हैं कि मुझ में कोई खामियां है. ऐसे लोगों की आप देखिए मान्यता सही नहीं होती है. समय बदल रहा है. Yes, we are talking about the younger generation, and this session is also some of the people who are watching, I'm sure, are students, and we end up asking कहाँ गई ये वैल्यू सिस्टम, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे आगे आगे. लेकिन we have to remember that values are not inborn, they are not learned. We need to get our priorities right. Please remember this, parents and others who are watching this particular streaming and program, that children watch our behavior more than they listen to our words. हमारी व्यवहार पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो हम किस तरह से व्यवहार करेंगे उसी को वो इम्बाइब करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम. So be careful with the way you deal with them, you behave in front of them. लेकिन remember, character is priceless. और जो कोशिश किया कि मुझे ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, उसको नहीं मिलेगा. एट द कॉन्शियस, विवेक को खो के आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं. सही मान्यताओं की कोई मोल नहीं होती है. दे आर प्राइसलेस. यहाँ पे एक और स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहूंगा. फिर से अब्दुल कलाम जी की ही स्टोरी है. एक बार अब्दुल कलाम जी को इनवाइट किया गया था ई रोड नामक जगह पे. साउथ इंडिया में एक जगह है ये, सौभाग्य वेट ग्राइंडर्स, ये ऑर्गेनाइजेशन की नाम थी. मिक्सर ग्राइंडर बेचने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी. उनको इनवाइट किया गया था. ही वेंट, he took the honor and he went, although he was the president of India, he went for that and he did all the formalities and he liked
one of the mixers, but he didn't say anything. Now, when he came back, it seems that the MD of that shop sent that mixer to APJ Abdul Kalam sir. And the very next day, he got a letter from APJ Abdul Kalam sir's office saying that, I am sorry, I'm not going to accept this gift. Please take the money for this. I need this mixer grinder, but I will not take it free of cost. And I believe the value of the mixer grinder was 4,850 rupees. तो एक चेक बना के उन्होंने अपने नौकर के हाथों, अपने पियोन के हाथों, उनके ऑफिस में भेजा, ऑफिस बॉय के हाथों, और वो चेक हैंड ओवर करके आ गया. लेकिन एक महीने तक दैट ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट डिपॉजिट द चेक. तो घड़ी घड़ी कलाम सर ने अपने ऑफिस के थ्रू उनको फोन करवाया, कहा कि आप इस चेक को डिपॉजिट नहीं करेंगे तो इस मिक्सर ग्राइंडर को ले जाइए वापस, मुझे नहीं चाहिए. दैट वाज हिज वैल्यूज, ट्रू वैल्यूज. अब प्रेसिडेंट थे, चाहिए तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने वैल्यूज, अपनी ऑनेस्टी, अपनी इंटेग्रिटी पे जरा सी भी आंच आनी नहीं दी. द मोमेंट यू पुट अ प्राइस ऑन द वैल्यू, the values lose their values. You know, this is very important. उसके बाद कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, वो नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी. So please remember that. Don't put a price on your values. Don't compromise on your values. What money can't buy? Amusements तो खरीद सकता है, मनोरंजन तो खरीद सकता है पैसा आपके लिए, लेकिन खुशियां नहीं खरीद पाएगा. एक बिस्तर तो खरीद लेगा, लेकिन नींद नहीं आएगी उसमें. बुक्स खरीद सकता है, लेकिन ज्ञान नहीं खरीद सकता आपके लिए. समय नहीं खरीद सकता, घड़ी खरीद सकता है. साथी ढूंढ के दे सकता है, पैसे ऐसे खरीद सकते हैं, लेकिन दोस्त को नहीं खरीद सकते आप. आभूषण खरीद सकते हो, लेकिन सुंदरता नहीं खरीद सकते हो. खाना खरीद सकते हो, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते हो आप. एक मकान खरीद सकते हो, हाउस, बट यू कांट बाय अ होम. घर नहीं खरीद सकते आप. दवाइयाँ खरीद सकते हो, लेकिन सेहत, स्वास्थ्य नहीं खरीद सकते. यू कांट बाय हेल्थ. सो no matter how much money you have, it is not going to help if your values are not in place. Now there can be two kinds of tragedies. Not getting what we want. One faces this situation when one expects too much. यानी आपको हर चीज अपने हिसाब से चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है. अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, उनके पिताजी ने उनको एक लेसन दी थी कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. कितनी बड़ी लेसन है ये, है ना. मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि हमारे मन का जब नहीं होता है तो भगवान के मन का होता है. अभी हम देख रहे हैं पिछले 4 महीने से पूरी दुनिया कोविड-19 के अंदर बंद पड़ी हुई है. ऐसा लग रहा है कि भगवान ने कह दिया है कि अंदर रहिए, मैं थोड़ा रिपेयर कर लूँ, उसके बाहर निकलिएगा आप लोग. ऐसा लग रहा है अभी. तो मन का हो तो अच्छा. हमारे मन का तो यही है कि हमको सभी अभी बाहर आना है, फिर से काम पे जाना है, फिर से काम पे लग जाना है. लेकिन काम तो हो ही रहा है, ये बातचीत तो हो ही रही है, अपनी हो रही है कि नहीं. तो मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा. एंड गेटिंग व्हेन what you want very very quickly, but when your value system is not clear, getting what one wants can also be a great tragedy. एक राजा था जिसे सोना बहुत पसंद था, गोल्ड. he loved gold, so he had a room full of gold, you know. Every day he used to go into that room and he used to admire कितना सोना था उसके पास. एक दिन उसकी बीवी आई और उसको बोला कि इतना सोना रख के क्या करोगे. तो वो बोलता है, तुझे पता ही नहीं है इसकी कीमत क्या है. मैं तो पूरी एक किंगडम बनाना चाहता हूँ सोने की, ताकि मेरा कोई मोल ही ना रहे इस दुनिया में, मैं अनमोल बन जाऊं. तो उसके जाने के बाद एक साधु आता है उससे मिलने के लिए, राजा से मिलने के लिए. और राजा उसकी बड़ी सेवा करता है. तो खुश होके वो साधु राजा को पूछता है, चला मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए, मांग. तो राजा कहता है, मुझे तो सोना ही पसंद है, तो ऐसा कुछ वरदान दे दीजिए कि मैं जिस चीज को छू वो सोने की हो जाए. तथास्तु, चला जाता है. अब अगले दिन सुबह उठता है राजा, तो he wants to test whether this will work or not, and he goes to the garden
He touches the plants turn into gold. He touches the tree turns into gold. Oh my God, he says this really works. He touches the floor turns into gold. Now it is breakfast time, राजा को भूख लगी है, उसने फ्रूट पे हाथ लगाया, फ्रूट गोल्ड का हो गया। अब राजा परेशान होने लगा कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो गया। उसकी बेटी सुबह सुबह उठ के आके पिताजी से लिपट गई हग करने के लिए। पिताजी ने उसे भी छुआ, बेटी भी गोल्ड की बन गई। अब राजा परेशान, अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गया। Then he cries, and again the sadhu comes, and then the king realizes that what a big mistake he did by asking for this kind of a boon. This is what the value system. He valued money, materialistic things more than family or anything else. So that is why it says the story of the King Midas says it all. You know. Now, what are the different types of values which are there in life? There are two types of values. One is instrumental values and the other one is terminal values. Let's take a look at each one of them. What are these? Instrumental values यानी ऐसी मान्यताएं हमारी कि हमको इस जिंदगी में क्या चाहिए अंत में, when we are, you know, what is it that we have desired, what is it that our existence wants, मुझे क्या हासिल करना है, what is my ultimate goal in life. Those values are what the terminal values are. These refer to desirable end states of existence, the goals a person would like to achieve during his or her lifetime. But there are instrumental values also. What are instrumental values? Instrumental values are values that deal with the preferable modes of behavior. यानी मुझे कुछ हासिल करना है तो मैं किस तरह की व्यवहार दिखाऊंगा दुनिया में तो मुझे वो हासिल होगा, या मुझे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए कि मेरी टर्मिनल गोल्स को मैं अचीव कर सकूं। चलिए देखते हैं, इसके ऊपर एडिशनल रिसर्च किया हुआ है इस पोलिश अमेरिकन जेंटलमैन मिल्टन रोकिच ने, और कितनी अच्छी इन्होंने बात कही है। देखिए 18 इन्होंने टर्मिनल वैल्यूज दिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और उनके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज भी दी है। देख लीजिएगा। If you want to lead a comfortable life, that's your end goal, a prosperous life, you have to be ambitious, you have to be hardworking. मेहनत करना जरूरी है, ये आपकी वैल्यू होनी चाहिए। You want to lead a stimulated life, you have to be broad-minded, you have to be open-minded. You want to have a sense of accomplishment, lasting contribution. दुनिया में आप कुछ देके जाना चाहते हैं तो अपनी काबिलियत पे कभी शक मत कीजिएगा, वो वैल्यू रखिए, कॉम्पिटेंट बनिए, सक्षम बनिए, एफिशिएंट बनिए, और जो करना चाहिए उसकी ओर दृढ़ता से आगे बढ़िए। आप यदि दुनिया को एक वॉर फ्री जोन, पीसफुल, शांतिपूर्वक समाज बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को भी चेयरफुल होना पड़ेगा, लाइट हार्टेड होना पड़ेगा, जॉयफुल रहना पड़ेगा। यदि दुनिया में सुंदरता फैलाना चाहेंगे तो उसके लिए आपकी मान्यताएं होनी चाहिए, क्लीनलीनेस, नीटनेस, टाइडीनेस, ये सारी चीजें आपको भी मान्यताएं मेंटेन करनी पड़ेगी। यदि आपको इक्वालिटी, सबका साथ एक और सबको इक्वल बराबर से दर्जा देना है तो आपको करेजियस होना पड़ेगा। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीव्स। यदि आपको फैमिली की सिक्योरिटी प्यारी है, ये आपकी टर्मिनल वैल्यू है, तो थोड़ा सा माफ करना सीखिए, फॉरगिव करना सीखिए, विलिंग टू पार्डन पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स। यदि आपको आज़ादी प्यारी है तो आप भी काम कीजिएगा, है ना, आप भी हेल्पफुल नेचर बनिएगा। यदि आपको हैप्पीनेस चाहिए तो उस तरह से आप आगे बढ़िएगा। यदि आपको इनर हार्मनी यानी अंदरूनी खुशी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, तो थोड़ा सा क्रिएटिव बनिए, है ना। यदि आपको मैच्योर लव, बोथ स्पिरिचुअल, सेक्सुअल लाइफ, इंटीमेसी, व्हाटएवर मैच्योर लव चाहिए तो आप भी सेल्फ सफिशिएंट बनिए, इंडिपेंडेंट बनिए। नेशनल सिक्योरिटी आपकी अगर गोल है, प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, दुनिया को, नेशन को बचाना है, तो आप भी सोचिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये आपकी सोचने की वैल्यूज होनी चाहिए उस चीज को अचीव करने के लिए। प्लेजर चाहिए तो रैशनल, कंसिस्टेंट, लॉजिकल वे में अचीव कीजिए लाइफ को।
सैल्वेशन चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो आप भी लविंग रहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करते रहिए, फल की चिंता न करें, ये गीता में भी कहा गया है। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए तो ओबीडियंट रहिए, ड्यूटीफुल रहिए, रिस्पेक्टफुल रहिए दूसरों के प्रति। सोशल रिकग्निशन चाहिए, समाज में आपको बड़ी रिकग्निशन चाहिए तो अच्छे नेचर के बनिए, वेल मैनर्ड बनिए, कर्टियस बनिए। सच्चा मित्र बनना है किसी का तो जिम्मेदारी उठाइए, डिपेंडेबल रहिए। और यदि विजडम चाहिए तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन का पालन कीजिए। कितनी सुंदरता से इन्होंने कही है इन 18 वैल्यूज को। अब बात करते हैं कुछ कोट्स की। मदर टेरेसा की स्टोरी आप सब जानते होंगे। मदर टेरेसा नोबेल पीस विनर। इनका ऐसा मानना था कि मेरे पेशेंट्स के लिए ही मैं जीती हूँ, मेरे ऑर्फनेज के लिए ही मैं काम करती हूँ, मेरी जिंदगी उनके लिए समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि she used to go to beg, there was a situation where in the orphanage that she ran in Kolkata, there were many children and there was no food for them to eat. So Mother Teresa told them that when you pray to the divine helps. Come, let us go, all of us, and beg. And they went to a shopkeeper. Now, this shopkeeper had a very, very bad impression about Mother Teresa and the kind of work she used to do. So she went and begged with him, can you give me some food for my orphanage children? It seems that he spat on her. उनके ऊपर थूक दिया उसने। तो मदर टेरेसा ने बड़ी सहानुभूति से उसको ऐसे किया, अपनी साड़ी में अपने हाथ पोंछी, कहा कि चलेगा, मेरे ऊपर भले आप थूक लीजिए लेकिन मेरे बच्चों के लिए खाना दे दीजिए। उस दिन उसे समझ में आया मदर टेरेसा किस प्रकार की इंसान थी, और उस दिन के बाद वो कंटिन्यूअसली उस ऑर्फनेज के लिए फूड ग्रेन्स और वेरियस अदर सप्लाईज पहुंचाने लगा। मदर टेरेसा ने बहुत सारी सुंदर सुंदर बातें कही है, उसमें से कुछ चुनी हुई कोट्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ। सुंदर सुंदर कोट्स है, देखिएगा। People are often unreasonable, illogical and self-centered. यही आप अभी जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आपको बताया था। that man was unreasonable. किसी के ऊपर थूकना मतलब कितनी उसको ईर्ष्या और गुस्सा होगा उसके ऊपर, मदर के ऊपर, कि उसने ऐसी काम कर दी। इलॉजिकल, सेल्फ सेंटर्ड, मुझे क्यों करना है आपके लिए ये सब काम, आपका वो ऑर्फनेज है, आप चलाइए, मैं क्या करूं उसमें। ऐसे लोगों को कहती है कि माफ कीजिए। दिस इज सिमिलर टू व्हाट जीसस सेड, ओ लॉर्ड प्लीज फॉरगिव देम। जब उनको इस तरह से सूली पर लटका दिया गया तो जीसस ने भी कहा, ओ लॉर्ड forgive them for they know not what they do and they know not what they say. सेकेंड कोट देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इफ यू आर काइंड, यदि आप सहानुभूति दिखाते हो दूसरे के प्रति, कभी कभी ऐसे लोग आपको एक्यूज करते हैं कि आपका मोटिव्स गलत है, आप अल्टीरियर मोटिव के हो, आप सेल्फिश हो इसलिए मुझे हेल्प करते हो। लेकिन कहती है बी काइंड एनीवे, उनको हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, लोगों को जो कहना है कहने दीजिए। यदि आप सक्सेसफुल हो गए, और ये बहुत लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस भी किया होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं भी, लोग आपके गलत दोस्त भी बन सकते हैं या सही माने में दुश्मन भी बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सक्सेसफुल नहीं होना है लाइफ में, हमें सक्सेसफुल होना है। सक्सेस क्या है? एक छोटे बच्चे ने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? तो दादी माँ ने जवाब दिया, और इतनी सुंदर जवाब दी उन्होंने कि सक्सेस इज दैट व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ऑन योर पास्ट यू गेट हैप्पी मेमोरीज। यानी जब अपने पास्ट को लेकर के आप कुछ सोचते हैं तो आपके मुंह पर जब एक हंसी छा जाती है तो आप सक्सेसफुल, आप कोई भी काम करो आप सक्सेसफुल हो उसमें। इफ यू आर ऑनेस्ट and frank, people may cheat you, but that doesn't mean that you shouldn't be honest and frank. कभी भी झूठ मत बोलिएगा, frank बात कीजिएगा।
घुमा फिरा कर बात मत कीजिएगा। लोग आपकी गलत फायदा उठा सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑनेस्ट और फ्रैंक नहीं रहेंगे। इफ यू मे स्पेंड इयर्स बिल्डिंग, अपना जो भी आपने रेपुटेशन बिल्ड किया, जो भी बिल्ड किया, उसके लिए सालों साल लग सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट कभी कभी वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। एक गलत कदम या तो आपने लिया, या आपके प्रति किसी ने कुछ फैला दी, कुछ गलत अफवाहें फैला दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्ड नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स बिल्ड करना है आपको। और यदि आप शांत और सुखी नजर आते हैं, उसको देख करके भी लोगों को ईर्ष्या होती है कि ये बंदा यार, इस कोविड सिचुएशन में भी ये बंदा इस तरह के खुशी और हैप्पीनेस और सेरेनिटी कैसे ये रख पाता है। ऐसे चीजों को लेकर के भी लोगों को ईर्ष्या होती है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हैप्पी नहीं रहना है, आपको हैप्पी रहना है। और ये हैप्पीनेस कभी भी बाहर मत ढूंढिएगा, अपने अंदर। एवरीथिंग इज विद इन। द मोमेंट यू गो विद इन योर सेल्फ, you will find you have all the resources to achieve excellence. Be happy. That is very, very important. अगर आप अच्छा काम करेंगे आज, लोग उसे कल भूल जाएंगे, लेकिन अच्छा काम करते रहिए हमेशा। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमारी मान्यताएं होनी चाहिए कि काम अच्छा हो तो लोग याद रखें या ना रखें। जैसे वो दादी माँ ने कहा, आप जब सोचेंगे तो आपको अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे। तो मेक श्योर दैट यू डू गुड एनीवे, बिकॉज when you give the best to your world, it may still not be enough. दुनिया को आप अपना सबसे अच्छा देते जाओ, लेकिन वो भी शायद कम पड़ जाए, लेकिन देते रहिए। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू गॉट एनीवे, है ना? क्योंकि अंततः ये आपके और भगवान के बीच में, it was never between those people and you. This is what Mother Teresa has said. What a beautiful 7 or 8 quotes. I mean, every time I see this, my eyes go moist because of the way she behaved with people, because of the way she treated people, because of the way she ran the organization, because of her honesty, dedication, and that is why she won the Nobel Peace Prize. How would you like to be remembered? We are almost coming to the end of our session. How would you like to be remembered? What comes to your mind when you look at this gentleman? इसकी कहानी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग है। लोग को लगता है कि this man achieved everything just on the basis of his talent. लेकिन दुनिया में टैलेंट ही सब कुछ नहीं होता है। He has put in extreme hard work. People who have seen him play for 24 years, 24 साल क्रिकेट खेलना कोई खेलने की बात नहीं है, आसान नहीं होता। जब वो शायद 11, 12 या 13 साल का था, तो उसके कोच ने सचिन तेंदुलकर को 55 दिन 55 days continuous he has played cricket, 2 to 3 मैचेस पर डे। एक मैच खेलते थे कहीं, उनके कोच ने उनको स्कूटर पे बिठाया, दूसरे ग्राउंड पे लेके गए, फिर वहां मैच खिलवाया, फिर वहां से तीसरे ग्राउंड पे लेके गए, वहां मैच खिलवाया। तो सोच के देखिए, एक 13, 14, 15 साल का लड़का अपने से ज्यादा उम्र के लड़कों के साथ खेल रहा है, और सिर्फ खेल ही नहीं रहा है, अच्छा खासा खेल रहा है। तो इतनी प्रैक्टिस हो गई थी इसको, इसीलिए 16 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी था जब इसने पाकिस्तान के खिलाफ 1989 में अपना डेब्यू मैच किया, और पहले मैच में ही उसने असर छोड़ा। ऐसे ऐसे बॉलरों के सामने, वकार यूनिस या वाजिम अकरम, ऐसे ऐसे बॉलरों को फर्स्ट सीजन में खेलने की बात नहीं है। वो तो छोड़िए, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि कोच रमाकांत आचरेकर जी ने इसको कहा था कि कभी भी अपने हेलमेट और अपने आर्म गार्ड पहने बगैर मत खेलना, क्योंकि
किसी भी वक्त तुझे बॉल लग सकता है, तो बचा, अपने आप को बचा के खेल, लंबा खेल पाएगा। तेरी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस करना और मैदान में जाकर डिलीवर करना। और यही किया इस जेंटलमैन ने। 16 नवंबर 2013 को जब ये रिजाइन किया, रिटायर हुआ, वानखेड़े स्टेडियम में बहुत बड़ी इसके लिए जो मैच खेला गया था, और उसमें जब वो रिटायर किया और वो स्पीच के बाद, अगर आपको याद है उसकी जो अंतिम, वॉट एवर द जेस्चर दैट ही डिड, ही गोज टू द ग्राउंड, उसको उसने नमस्कार किया, नमन किया और अपने माथे पर लगाकर वापस आ रहा था वो। ये सीन्स बहुत बहुत, मतलब जब भी इसके बारे में सोचते हैं हम, इट अनफॉरगेटेबल सीन्स दैट brings about and shows what kind of values Tendulkar had. Beautiful, beautiful, story about this gentleman. And the next, of course, who can forget? I told you you're going to hear about APJ Abdul Kalam sir 2 or 3 times today. And this story is not about him actually, but it is about his boss. When the launch of the Indian satellite Rohini was to happen in 1979, APJ Abdul Kalam sir was the project director and Satish Dhawan was the chairman of ISRO at that time. It seems that everything was decided. I think it was in August 1979 when it was supposed to be launched. Everything was decided, but 4 minutes prior to the launch of the satellite, it seems that the computers were showing that there is a possibility that the launch may not be successful. However, APJ Abdul Kalam sir and his team of scientists took a meeting, and it seems they all told him that we can bypass the computer and we can launch and it will be successful. He took that decision and they launched the satellite. Now, in a satellite launch, you will all be aware that there are two separations. The first separation is from the rocket launcher, and then the satellite launcher gets separated. The first launch, the first separation was okay. However, when it came to the second separation, instead of separating, both the satellite and the launcher went and fell into the Bay of Bengal. Now, obviously, it was a big event. Lot of media hue and cry happened, and there was a media conference called. They said it's a failure, etc., etc. And Abdul Kalam ji was a little worried to go and take that meeting. And this is not my story. This is Abdul Kalam ji himself saying every single time whenever he has given speeches. I am just repeating what he says. वे कहते हैं कि Satish Dhawan took him to that conference, media conference, and he said, I will take the conference, you just sit by my side. And when the media was questioning, it seems Satish Dhawan ji ne kaha ke, I take the responsibility. My team failed, no doubt, but we have learned so much today that we promise that next year we shall relaunch the satellite. And in July, I think it was July 18th, if my memory serves me right, July 18th, 1980, our first satellite Rohini was launched again, and this time it was successful. Now, again, there was a this was now a happy moment, and the media wanted to meet again and shower praise on the Indian Space Research Organization. However, this time, Satish Dhawan stepped aside, and it seems he told APJ sir, you go and take the meeting and take all the accolades. That was the kind of gentleman Satish Dhawan was. And it is believed that, some of the quotes that, one of the quote that you can see, he says, difficulties in your life do not come to destroy you. जो आपके जिंदगी में तकलीफें आती है, वो आपको डिस्ट्रॉय करने नहीं आती है, but they come to make you realize your hidden potential. आपके अंदर कितनी ताकत है, उसे आपको समझाने के लिए आती है. Let difficulties know
that you too are difficult. कठिनाइयों को भी बता दीजिए कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग है. This was the attitude. We all know that even in his last speech when he was in Dehradun, he had gone to Dehradun, काम करते करते गए वो. कितनी इनकी जो लाइफ है, इनकी लाइफ को स्टडी कीजिएगा. बच्चे अगर सुन रहे हैं तो प्लीज प्लीज एपीजे अब्दुल कलाम सर के जीवन को पढ़िएगा. इनकी इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है. इन्होंने बचपन में कागज पेपर बेचे, घर घर में पेपर बेचे. एक बहुत ही गरीब फैमिली से आने के बावजूद प्रेसिडेंट बने इंडिया के. और जब रिटायर हुए 5 साल के बाद, तो यदि चाहते तो he could have got such a big house for himself, but he said no, I don't need anything. I just need a 2-bedroom apartment, that's it. And it seems when lastly his things were seen, there were more than 1,000 books, but only 2 or 3 pairs of suit, or the dresses that he wore. That was the kind of humility he had. For him, knowledge, he loved meeting people, he loved meeting children, and he says children are the future and you are the future. The children who are listening, please, please read the story of APJ Abdul Kalam. It is very, very motivating indeed. This is my own attitude pledge. I'll tell you a little story about this, and then one more story, and then I'm done for the day. This attitude pledge defines my values. It says, I am a happy and grateful person. मैं एक बहुत ही खुश मिजाज और grateful person हूँ. आज मेरे पास जो भी है वो भगवान की वजह से ही है. I always say the will of the divine does not take one where the grace of the divine cannot protect one. आपको बता दूं कि ये प्रोग्राम शुरू होने के 5 मिनट पहले, सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले मेरे कनेक्शन में प्रॉब्लम आई थी. एंड आई प्रेड टू द डिवाइन एंड सेड, आई एम अ हैप्पी एंड ग्रेटफुल पर्सन. आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए. यदि आपको आज मुझे बात करवाना है तो आप प्रोटेक्ट कीजिए मेरे कनेक्शन को, और देखिएगा मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ आज. आई वैल्यू, ये मेरी मान्यताएं हैं. आई वैल्यू एंड बिलीव इन बीइंग व्हाट? ऑनेस्ट. ईमानदारी से काम करो, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ और दूसरों का आदर करो, रिस्पेक्टफुल रहो. When you value and believe in being honest, empathetic and respectful to others, chances are that others will be honest, empathetic and respect with you. और ये कमिटमेंट है. लास्ट में एक चीज कमिट कीजिए लाइफ में और उस कमिटमेंट के साथ जिएगा. दैट इज योर टर्मिनल वैल्यू. और उसको हासिल करने के लिए ये सारी जो भी है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज है. एंड दैट इज, I commit to live my life with what? With passion, with integrity and the positive attitude. No matter what happens, COVID है तो है, ये जाएगा. Nothing is going to be permanent in life. ये भी चला जाएगा. And we will all be normal very soon. Let us all jointly pray for that the divine force works and we are all able to come back to a normal life very, very quickly. This is my attitude pledge. I want to leave you all with one last story, and this story is of a girl who used to complain a lot, and she used to always say that मेरे साथ ही सारा चीज गड़बड़ होता है, मेरे साथ ही सब गलत होता है. She had that kind of an attitude. और आज जब उसको ऐसा लगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है फिर से, तो she went and she started complaining to her father. देखिए कल ही मेरे साथ कुछ गलत हो गया था, आज फिर से कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है, ये क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है. तो उसके पिताजी तो थे बावर्ची, he was a cook. तो he said, कम बेटा, मैं खाना भी बना लेता हूँ और दोनों की बातचीत भी होती रहेगी. तो उसको लेकर के गए दोनों. लेकिन लड़की मायूस थी, लड़की नाराज हो गई. क्या पिताजी, मैं आपको मेरी दुखों के बारे में बता रही हूँ और आप खाना बनाने के लिए बैठ गए. जरा सा शांति रख बेटा, चल मेरे साथ. He took her inside and
The man puts 3 pots of water on the gas. एक पॉट में उन्होंने पोटैटोज डाली, दूसरे पॉट में उन्होंने अंडे डाले, और तीसरे पॉट में he started making coffee. So what is it? He put potatoes, second pot he puts eggs, and in the third pot he puts coffee. He starts making coffee. And the girl says, "What is this, Dad? Again you're cooking, you're not even listening to me." And he again tells her, "Just hold on for 15-20 minutes. Your questions will be answered." 20 minutes के बाद he peels the potatoes and keeps it on a plate. He peels the egg, keeps it on a plate, and he takes the coffee, he shakes the coffee, it is very, very hot, and pours it in a cup and keeps it on the table. And then he tells his daughter, "Go and touch the potatoes." कैसे हैं? So she touches it and it crumbles. Then he says, "Go and touch the egg." कैसे है? थोड़ा सा hard हो गया है egg. He says, "Take a sip of the coffee." कैसा लग रहा है? तो she takes a cup, उसका एक सिप लेती है और बोलता है, "अच्छा है, बहुत अच्छा अरोमा है, एकदम बढ़िया कॉफी बनाया है आपने, लेकिन पिताजी मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये क्या क्या कर रहे हैं आप? मैं मेरे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए आई हूँ और आप ये सारी चीजें मुझे दे रहे हैं." तो पिताजी उसको कहते हैं, "देखिए, तीनों, आलू हो, पोटैटो हो, या एग हो, या कॉफी हो, तीनों गर्म पानी के अंदर गए। एक ही पानी था, तीनों गर्म पानी के अंदर गए, लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से बाहर आए। आपने नोटिस किया?" हाँ किया। तो उससे क्या होता है? बोलता है, "इंसान भी ऐसे होते हैं बच्चा, कोई इंसान बाहर से कड़क नजर आता है, लेकिन वो जो गर्म पानी है, इस दुनिया में जितनी कठिनाइयां आती है उसे कहा जाता है गर्म पानी। कठिनाइयों का जब सामना करता है तो उस पोटैटो की तरह क्रम्पल हो जाता है। पानी में जाने से पहले हम सब जानते हैं कि अंडा लिक्विड फॉर्म में होता है अंदर से, लेकिन पानी में जाने के बाद वो थोड़ा हार्ड होके बाहर आया। उसका क्या तात्पर्य है? कुछ कुछ लोग ऐसे नजर आते हैं कि थोड़े से कमजोर हैं, लेकिन जब कठिनाइयां आती है तो थोड़े कड़क बन जाते हैं। लेकिन क्या जिंदगी में एक कठिनाई आपके लाइफ को डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती है। कॉफी भी उसी पानी में गया, अपने आप को उसके अंदर ढाल के एक नया ही अरोमा बनाकर बाहर आया, जो जब आप पीते हो तो आपको इतना उसका स्वाद अच्छा मिलता है। तो बेटा, आपको ये सोचना है कि आपकी मान्यताएं क्या होनी चाहिए। क्या आप उस आलू की तरह, पोटैटो की तरह रहना चाहते हो कि जैसे ही कठिनाइयां आती है आप टूट जाते हो, या उस अंडे की तरह रहोगे, एक कठिनाई आई आप थोड़े हार्ड बन गए और बाप रे आपने सोच लिया कि बस जिंदगी खत्म हो गई, या उस कॉफी की तरह रहोगे, भले कितने भी कठिनाइयां आए, मैं उसको अपने आप में उसको ढाल के समाज को कुछ नया ही दे करके जाऊंगा। ये आपका विश्वास होना चाहिए। Those should be your values in life. I presume that you all enjoyed today's session. Once again, I would like to express my heartfelt gratitude to Young Indians Bhopal, the management of Young Indians Bhopal, and each and every one of you who has seen today's broadcast. Thank you. Do take good care of yourself. Stay safe, stay healthy, and make sure that you commit to your values and you live by your values. God bless you all. Thank you, Prashant, for all the support. Thank you, Ashish Sharma ji, for giving me this opportunity. Thank you once again to the management of Young Indians Bhopal for giving me this opportunity. God bless.